daily lead code challenge, and today's question is a hard problem of lead code, which is painting the walls. You are given two zero index arrays, cost and time, which have n number of size. There are two painters available: paid painter that paint ith wall in time I and takes cost I units of money, free painter that paint wall 1 unit of time at a cost 0, but लेकिन एक चीज क्या है कि free painter can only be used if the paid painter is already occupied. You have to paint the n walls but taking a minimum amount of money. Okay guys, so let's look out the question. First of all, basically we make a array like this is our cost array and this is our time array. Both are similar. Okay, and we have to paint the walls. So first of all, we know that there is n walls. It means 4 walls we want to paint. But we have two conditions for painting a walls. We have two painters. One is for paid and F for free painters. But free painters can only be occupied when there is paid painter is already occupied. So we have to take a cost of minimum. So first of all, we can say that the first is our one, which is painted by paid painter, 3 and 2. I said this wall is painted by free painter. Now again this is painted by paid painter. Now this is again paid by free painter. So 1 plus 2, our cost is 3, which is minimum. Okay, so as you see the question, we understand that for painting any wall, I say there are two choices, like I use a paid pointer or I choose a free pointer. Okay, and we have to making a choice, and such type of question we already done in previous questions. So if you not see these videos, go to my DP playlist and watch that videos and you understand the concept. Basically we have walls, either I use paid pointer, either I use free pointer, then again choices free or paid, free or paid. Okay, but our main goal is to taking a minimum cost. Okay guys, so let's code it. First of all, I make a recursive solution for you and then going to the memorize it. So first we take a n. So I take a cost size, and after taking a cost size, I make a function f cost and time. Now int f, this is our index, this is our remains, this is our vector of cost, and this is our vector of time. Okay, now first of all I have to write a base cases, and our first base case is what? If remains is going to 0, then we can say our work is done, return 0. And if अगर हमारा idx is equals to cost of size, which means that कि हमारे पास ऐसी कोई कॉस्ट ही नहीं आ रही कि हम जो है पेंट ही नहीं कर पा रहे वॉल्स को. ओके, इन दैट केस I just return int max. Okay guys, now two choices. One is pick. For picking I do idx plus 1. Okay, then our remains, but
in remains, what we can do when we pick something, then its time is माइनस फ्रॉम इट, बिकॉज हमें पता है कि हमारा फ्री पॉइंटर जो है हमें 1 यूनिट ऑफ टाइम में, तो हम उस हिसाब से उतने टाइम के बेसिस पे हम जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम रिमेन्स को यहाँ पे हम अपनी वॉल्स को रिड्यूस करेंगे जहाँ पे हम पेड पॉइंटर ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा फ्री वाला जो है पेंटर काम कर जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। बट विद दिस हम जब पिक कर रहे हैं तो हमें उसकी कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी, तो हमें कॉस्ट भी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। इंट नो पिक। अगर मैं कहता हूँ, अब मैंने फ्री वाले को क्या कर दिया, फ्री वाले को मैंने कंसिडर कर लिया एज ए नॉट पिकिंग, तो IDX तो हमारा इंक्रीज होगा, रिमेन्स हमारा सेम रहेगा, कॉस्ट हमारी सेम रहेगी, टाइम हमारा सेम रहेगा, एंड इन लास्ट आई जस्ट रिटर्न अ मिनिमम ऑफ पिक एंड नो पिक। ओके, या तो जस्ट रन इट गाइस, it gives us a runtime error. Wait a minute. End cost int remains index. ओके 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 ओके, तो इट्स ये हमारा आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। हम रिमेन्स को क्या करेंगे, हम रिमेन्स को -1 और करेंगे। ठीक है, अब रन करते हैं। इट सेज इट्स अ ओवरफ्लो कंडीशन, हमें इंट की जगह रुकिए। ओके, यहाँ पे 10⁶ है, तो हमें उस हिसाब से यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये नहीं ले सकता जो मैंने इंट मैक्स लिया अपना, हमें यहाँ पे एक अपना हाई वैल्यू बनानी पड़ेगी जिसको मैं असाइन करूँगा ओके। यस, नाउ इट्स एक्सेप्टेड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट कि व्हाट हैपन, क्योंकि हमें यहाँ कभी कभार जो है अपने कॉन्स्ट्रेंट्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। हम इंटरमैक्स नहीं ले सकते, हमें उस कंस्ट्रेंट के हिसाब से चीज़ें लेनी पड़ेंगी। ठीक है गाइस, तो इसलिए ये गड़बड़ हो रही थी। तो एक्सेप्ट हो रहा है, हम सबमिट करते हैं। वैसे सबमिट में जहाँ तक इसमें TL ही आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से कंस्ट्रेंट दे रखे हैं तो उस हिसाब से TL ही बनेगा, क्योंकि ये जो है आपको भी पता है जब हम रिकर्सिव करते हैं तो वो ट्री की फॉर्म में चलता है, और उसकी जो होती है एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएटर होगी इस केस में। ठीक है, तो चलिए आइए इसे मेमोराइज करते हैं। मेमोराइज के लिए सिंपल करना है, बस कुछ नहीं, हमें एक वेक्टर बना लेंगे। वेक्टर ऑफ DP बना लिया हमने, जिसमें हमने n एंड वेक्टर ऑफ n+1 -1। ओके, और इसे मैं ओके रुकिए, चलिए मैं इसे मैं इतने को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपके लिए मैं पड़ा रहने देता हूँ। ठीक है, ये वेक्टर ऑफ DP इंट n-1, और ये मैं जो है इसको फंक्शन को चेंज करके ऐसे कर देता हूँ, मैं इसे फन कर देता हूँ। और अब यहाँ पे हम अपना DP भी पास करेंगे, तो एक हमारा DP का और चला गया। अब इस पूरे को मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक नया फंक्शन बना लेता हूँ। एंड यहाँ पे हमने अपना DP वेक्टर डाल देते हैं। ओके गाइस, बेसिकली ये हमने DP वेक्टर पहले मैं चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत गलती होती है। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमें पता है कि जब हमारे बेस केसेस हो गए, बेस केसेस के बाद DP वाला केस डलेगा एक, तो कि जब IDX और रिमेन्स, अगर ये -1 की जगह ये हमें ऑलरेडी तो रिटर्न कर देना उस समय उसकी वैल्यू को,
तो idx एंड remains एंड पिक और नॉट पिक वाले पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न में हम idx के साथ अपना रिमेन्स में इसे स्टोर करवा रहे होंगे साथ के साथ। और अब मैं जल्दी से इसे रन कर देता हूँ। हल्की सी एरर आई है, इट सेज इन पिक वेट, देखते हैं कहाँ पे कंपाइलर एरर दे रहा है ये। ओके, तो यहाँ पे हमने फन तो कर दिया लेकिन हमने डीपी ऐड नहीं करी है, तो यहाँ पे जल्दी से हमने डीपी ऐड करी, रन करा आगे। ओके गाइस, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करते हैं जल्दी से। ओके, एक हमारा जो है इसमें थोड़ा सा रह गया है, तो चलिए इस एक केस को भी जल्दी से इसमें टैग। ओके गाइस, तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने हल्का सा कुछ नहीं, हमने हाई की वैल्यू ही चेंज करी है, क्योंकि क्या है यार, कंस्ट्रेंट की ही बात है सारी की सारी, ठीक है, क्योंकि हमारा कोड तो रनेबल है बट कंस्ट्रेंट के चक्कर में ये गड़बड़ कर रहा था। तो कंस्ट्रेंट हमने 1 की पावर 9 कर दिया है और ये अब हमारा कोड सही चल रहा है। और देखिए ये हमारा एक्सेप्ट भी हो गया है और आज का हमारा डेली लीड कोड चैलेंज कंप्लीट हो गया। आप एक बार कोड भी देख सकते हैं, ठीक है। कोई चेंज हमने नहीं करा है, बस हमने ये हाई की जो वैल्यू है वो 1 की पावर 9 कर दिया, ठीक है, 10 की पावर 9। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट कोड के साथ।